آج میں آپ کو وہ 6 کاروبار بتانے لگا ہوں کہ جن میں نقصان کا اندیشہ بہت کم ہے، اور ہم ان کاموں کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے ایور گرین کام ہے، یعنی کہ سدا بہار کام ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست فرحان بھائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ساتھی پروگرام صبح 9۔ اچھا، یہ پروگرام جو ہے نا میرا تھوڑا سا لینتھی ہو جائے گا، لہٰذا وہ لوگ جو کہ سیریسلی کام کوئی شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت پروفیٹیبل ہے، اور باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی اویئرنیس ہے۔ تو پروگرام اس کی میں آپ سے پہلے معذرت کرتا ہوں کہ پروگرام تھوڑا سا لینتھی ہونے لگا ہے، لیکن یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفٹ کرے گا۔ لے جی، چلتے ہیں ان 6 کاروبار کی طرف کہ یہ 6 کاروبار جو ہیں یہ کون سے وہ 6 کاروبار ہیں کہ جن کے اندر ڈوبنے کا اندیشہ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو میں نے یہ جو لسٹ آپ کے سامنے دینے لگا ہوں، یا جس طرح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کوئی پرائرٹی نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے کام بتاؤں گا کہ کون کون سے کام ہے، اور اس میں کتنی انویسٹمنٹ جو ہے آپ کو شروع میں کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد کتنا پروفٹ جو ہے آپ اس کے اندر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہر پروگرام میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات بتائی جائے وہ بڑی ریئلسٹک بات ہو، اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ فیکٹس کے ساتھ ہو۔ اب فیکٹس کے اندر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سٹیٹسٹکس کے سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کہ سٹیٹسٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ جو بھی کاروبار ہے آپ کو ڈسکس کروں آپ کے ساتھ، اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو 6 کاروبار میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ 6 کاروبار جو ہیں یہ ہماری روزمرہ کے جو ضروریات ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ 6 کاروبار جو ہیں ان کے ڈوبنے کا اندیشہ بہت کم ہے۔ دیکھیں، جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا کہ جس کے اندر کوئی جیسے لگژری آئٹمز کا کام ہو، اس کے اندر کبھی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے، کبھی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہوتا ہے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان 6 کاروبار کے اندر جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، یہ وہ 6 کاروبار ہیں جن کے اندر ڈوبنے کا اندیشہ جو ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے کیونکہ یہ لوگوں کی روز کی ضروریات ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ یہ 6 کے 6 کاروبار جو ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے کوئی سیپریٹ دفتر لیں، کوئی سیپریٹ دکان لیں، کچھ نہ کریں۔ آپ یہ 6 کاروبار جو ہیں وہ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ خالی پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت ترقی یافتہ ممالک، اور امریکہ سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں کون سے ملک کو آپ شامل کریں؟ امریکہ کے اندر بھی جو ہے آج کل لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر گھر سے جو ہے وہ اپنے بزنس جو ہیں ان کے شروع ہو رہے ہیں، اوریجنیٹ کر رہے ہیں، اور زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ایکسپینسز ہیں، یعنی کہ بزنس کے اندر جو اوور ہیڈز ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے۔ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ ہم اپنے اوور ہیڈز کو جو ہے وہ ہم کس طرح کم سے کم کر سکتے ہیں۔ لیکن 6 کاموں کی طرف آتے ہیں، اور یہ جو 6 کام ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کام ہے ہوم کچن بزنس کا کام۔ اچھا، ہوم کچن بزنس جو ہے یہ میرا تو فیوریٹ کام ہے، کیونکہ میں خود کر بھی رہا ہوں یہ کام جو ہے۔ اچھا، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اگر آپ چاہیں تو یہ 6 کے 6 کام جو ہے اگر آپ کے پاس گھر والے آپ کے جو ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ 6 کے 6 کام آپ 6 کے 6 جو ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں، ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ 6 کمپنیز جو ہیں وہ شروع کر دیں گے۔ جیسے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں کچھ نہ کچھ طریقے سے، نہ کسی طریقے سے یہ 6 کے 6 کام اس وقت جو ہے میں کر رہا ہوں، 6 مختلف کمپنیز کے ذریعے سے کر رہا ہوں۔ جتنے یہ 6 کام ہیں ان کو میں گھر سے کر رہا ہوں۔ اچھا، 6 کام کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہوم کچن بزنس۔ اچھا جی، ہوم کچن بزنس جو ہے نا، اس کے اندر جو سٹیٹسٹکس ہمیں بتاتے ہیں، جو میرا اپنا ڈیٹا مجھے بتاتا ہے کہ ہمارا جو اوور ہیڈز وغیرہ نکال کے جو ٹوٹل پروفٹ ہے نا، اگر آپ گھر سے یہ کام کر رہے ہیں، دکان کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ گھر سے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ تقریباً 70% کے قریب، 70% آپ کا پروفٹ مارجن ہے۔ اچھا، ہوم کچن بزنس کے اندر جو انویسٹمنٹ انوالو ہے، اگر آپ یہاں پر دیکھیں 70% جو ہے اس کا پروفٹ ہے، اور انویسٹمنٹ جو انوالو ہے وہ تقریباً 30,000 روپیہ، 30,000 روپیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ انوالو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ آپ کہاں پر جو ہے وہ خرچ کریں گے؟ دیکھو، ہوم کچن بزنس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو شاید لینی پڑے، شاید آپ کے گھر میں ہوں یا شاید آپ کو لینی پڑے۔ مثال کے طور پہ کوئی چھوٹی سی
5 से 10,000 रुपए के बीच, 10,000 रुपए तक की फूड फैक्ट्री आपको लेनी पड़े, आपको कुछ यूटेंसिल्स लेने पड़े, आपको कुछ कटर्स लेने पड़े, ठीक है। अब ये चीजें ऐसी हैं कि जो अगर टोटल इनकी वैल्यू लगा लेना तो ये तकरीबन तकरीबन कोई 30,000 के करीब इसकी जो है वो मालियत बनती है। और बड़ी सिंपल चीजें आपने लेनी है, कोई आपने कॉम्प्लेक्स चीज नहीं लेनी है आपने इसके अंदर, कोई बड़ी मशीनरी नहीं लेनी है आपने। होम किचन बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर आपको मिल रहा होता है पोटैटो फ्राइज का, आपको बहुत सा ऑर्डर जो मिल रहा होता है वो खानों का मिल रहा होता है। अच्छा, हम लोगों को जो ज्यादा होम किचन बिजनेस के अंदर ऑर्डर मिल रहा होता है वो ज्यादातर रैप्स का बिजनेस मिल रहा होता है, फिर हमने सैंडविचेस का, बर्गर्स का, नगेट्स का, ये वो चीजें हैं जो हमें ज्यादा मिल रही होती है। फिर जब हम रैप्स या नगेट्स भेज रहे होते हैं तो उसके साथ फिर पोटैटो फ्राइज भी जो होते हैं वो भेजने होते हैं। तो उसके अंदर जो है हम लोगों को जो है ज्यादातर जो है वो जो स्नैक्स हैं जो उसका काम जो है वो ज्यादा मिल रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो होम किचन बिजनेस के अंदर हमें बहुत प्रॉफिटेबल आइटम मिल रहा है वो है बिरयानी। बहुत ज्यादा हमारा ये सेलेबल आइटम है बिरयानी, हम बहुत बहुत दफा लोग मंगवाते हैं। फिर उसके अलावा जो है निहारी जो है वो बहुत ज्यादा मंगवाते हैं लोग जो है, और इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे बिरयानी की प्लेट है वो हमें घर के ऊपर कॉस्ट करती है तकरीबन कोई 150 रुपए की ना, और हम वो बिरयानी की प्लेट इस वक्त जो बेच रहे हैं वो तकरीबन बेच रहे हैं 280 रुपए की। लेकिन इस 280 रुपए के अंदर अगर आप 150 रुपए की बिरयानी की प्लेट बन जाती है, फिर उसके साथ उसका सैलेड रायता करके तकरीबन 180 रुपए के अंदर हमें बिरयानी कॉस्ट कर रही होती है घर के ऊपर। 100 रुपया हमारा मार्जिन होता है, 280 रुपए जो है वो हम लोगों को जो है उससे बिरयानी की एक प्लेट से आ रहा होता है। इसी तरह अगर आप निहारी को देख ले तो निहारी के अंदर भी तकरीबन तकरीबन हमें 70% 80% का जो है प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है। तो होम किचन बिजनेस एक ऐसा काम है कि जो आप बड़े आराम से घर से कर सकते हैं, और इसके अंदर हमारे घर की जो खवातीन हैं, हमारी बहनें जो हैं, वालदा जो है, ये जो है बेसिकली काम के अंदर बहुत ज्यादा शौक से करती हैं, अच्छे खाने बनाती हैं और इनकी अच्छी डिमांड है। होम किचन बिजनेस के हवाले से एक चीज याद रखिएगा कि आपने काम जो है वो बहुत ज्यादा अपने घर से दूर एरियाज के अंदर काम नहीं ढूंढना है, आपने अपने घर के करीब एरियाज में काम ढूंढना है। इसके अंदर एक जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो ये होती है डिलीवरी की। तो डिलीवरी के हवाले से मैं अक्सर बहुत दफा इसके ऊपर मैंने सेपरेट प्रोग्राम भी किए हैं कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो डिलीवरी है उसमें कोशिश किया करें कि आपको आपके घर के आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, साथ में कोई पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने जो है जो हॉस्टल में लड़का हमारा खाना लेकर जाता है वो जो है वो पढ़ रहा है, और साथ में जो है हम उसको खाना जब देते हैं कि ये जाके पहुंचा कर आना है, तो उसको पर ऑर्डर जो है हम लोग कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए, इस तरह जो है हम उसको मुख्तलिफ जो है वो उसकी जो है चार्जिंग कर रहे होते हैं, रेम्यूनरेट कर रहे होते हैं, पेट्रोल का खर्चा उसके अलावा दे रहे होते हैं। मैं अपने तौर के ऊपर जो है किसी डिलीवरी कंपनी को जो है एंगेज नहीं करता। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो कि कहती हैं कि जी आप लोग हमारे थ्रू खाना भिजवाएं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि यार मेरी लोकेलिटी के अंदर, नेबरहुड के अंदर इतने सारे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, पढ़ भी रहे हैं, साथ में कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, तो हम उनको क्यों ना जो है ये मौका दें। तो होम किचन बिजनेस का काम जो है ये एक अच्छा काम है, आपको एक अच्छा रेवेन्यू जो है ये दे सकते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप इवन ये पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं ये काम जो है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कारोबार कोई भी हो, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन पार्ट टाइम नहीं होगी। फोकस आपका हमेशा जो है आपका अपना कारोबार रहना चाहिए, जरूर रहना चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा जो मैं आपको एक दूसरा काम बताने लगा हूं, ये भी एक बहुत प्रॉफिटेबल काम है और इसके अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, तकरीबन तकरीबन कोई 25% के करीब इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है, और ये काम है दूध और दूध से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनकी डिलीवरी का। अच्छा, ये काम एक ऐसा है कि जिसके अंदर आपको एक अच्छा मार्जिन भी मिल रहा होता है, और ये एक ऐसी चीज है जिसकी हर वक्त डिमांड रहती है। कौन इनकार करेगा, घर में चाय भी पीनी होती है, घर में लोग वैसे भी दूध पीते हैं, इसके अलावा घर के अंदर दही जो है वो हमेशा जरूरत होती है। तो आपको इसके अंदर एक अच्छा मार्जिन मिल रहा होता है, और फिर उसके अंदर आपको सबसे बड़ी अच्छी जो कंफर्ट लेवल है इस काम के अंदर कि आपके घर के अंदर जो मर्द हजरात हैं वो जाके दूध की सोर्सिंग करेंगे, और हर इलाके के अंदर आसपास कोई गाय भैंस जहां लोगों ने पाली हुई हैं, पाड़े हैं, वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। आप कराची के अंदर देख लें तो कराची के अंदर इब्राहिम है, जैसे अगर कोरंगी की तरफ जाएं तो इब्राहिम हैदरी की तरफ है। फिर उसके अलावा अगर नाजमाबाद की तरफ चले जाएं तो नाजमाबाद की भी जो साथ में एडजॉइनिंग एरियाज हैं, बोर्ड ऑफिस के पीछे हैं। तो आपको हर जगह के ऊपर, इसी तरह आप चले जाएं, अगर कराची के अंदर हम बात करते हैं डीएचए की, तो डीएचए के अंदर भी जो है आपको आसपास के जो इलाके हैं,
जैसे कजूमाबाद वगैरह हो गया, वहां से आपको दूध की सप्लाई मिल रही होती है। लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर भी जौहर टाउन के अगर आप देखें तो वहां पे भी आपको आसपास जो है दूध की सप्लाई जो है वो मिल रही है। जौहर टाउन के अंदर दूध किसके करीब शमसानी पिंड है, वहां पे दूध की सप्लाई मिल रही है। ये बहरिया टाउन की तरफ आए तो जलियाना है। इसी तरह अगर आप डीएचए की तरफ चले जाएं तो भट्टा चौक के आसपास जो है वो दूध, या भट्टा चौक या सदर के आसपास जो है वो दूध के पाड़े एग्जिस्ट करते हैं, जहां से आपको दूध की सप्लाई जो है वो मिल रही होगी। अच्छा, इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन का हिसाब है वो ये है कि अगर आप इसमें जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है ना आपने दूध को जो है वो देना है और बड़े पढ़े लिखे तरीके के साथ आपके काम करना है। वो बच्चे जो कि पढ़ रहे हैं और साथ में कोई ना कोई काम ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम है। उनके पास बाइक होनी चाहिए। अच्छा, इस बाइक के ऊपर ये मैं आपको एक वो दिखा रहा हूं, इस तरह का आपने एक कंटेनर लगाना है बाइक के ऊपर जो है, उसके अंदर आपने दूध की वो एक ट्रेडिशनल तरीके का रह गया, आपने वो बड़े बड़े मर्तबान लगे हुए हैं, जरूरत नहीं है। एज लो एज एक छोटा बैग जो शोल्डर बैग होता है, वो भी इस काम के अंदर जो है आपको बहुत अच्छा मार्जिन भी दे सकता है और उसके अंदर आपको कुछ मजीद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये भी आप वीडियो देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि किस तरह की बाइक के पीछे जो है वो बैग लगा हुआ है और आप उसके अंदर जो है वो दूध जो है वो लेकर जा सकते हैं। जो कॉस्ट की बात करें और प्रॉफिट की बात करें तो जैसे इधर आपको नजर आ रहा है कि जो दूध के अंदर टोटल आपको तकरीबन 25% जो है वो आपको प्रॉफिट है। जो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है वो कोई तकरीबन 25,000 रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 25,000 रुपए आपने खर्च किधर करना है। ये 25,000 रुपया जो है ना ये आपका खर्च होगा बॉटल्स के अंदर। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप बॉटल्स के अंदर दूध को फिल करके जो है वो भेजा करें। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, पैकिंग अच्छी करें इसकी जो है। ऐसा ना हो कि हाँ ठीक है शॉपर बैग के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपकी पैकिंग जो है वो बोल रही हो कि एक पढ़े लिखे आदमी ने एक अच्छा काम जो है वो शुरू किए। और क्वालिटी पे जरूर फोकस करें। क्वालिटी जो है ना वो इसके अंदर आपकी जो है ना जिसे कहते हैं कि ट्री है, प्रॉफिट तो शेडो होता है ना, यानी कि मेन चीज जो है ना वो क्वालिटी। और क्वालिटी के ऊपर आपने जहां से सप्लाई लेनी है उधर से आप जो है हमेशा कोशिश करें कि अपनी सप्लाई के ऊपर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो। तकरीबन आपको जो दूध, जो खालिश दूध आपको मिलेगा वो तकरीबन 180 रुपए से लेके 210 रुपए लीटर तक, ये इतनी बड़ी रेंज एग्जिस्ट करती है। 180 से लेके 210 रुपए लीटर तक आपको दूध मिलेगा। आप इसको जो बेच रहे होंगे वो तकरीबन आप 250 रुपए, आज की मार्केट की बात कर रहा हूं, 250 रुपए पर लीटर जो है वो आप दूध जो है वो बेच रहे होंगे, खालिश दूध जो है। इसके अलावा जो आप दूध जो खालिश नहीं होता, अच्छा इसमें भी ये ख्याल रखिएगा कि पानी ना मिक्स कीजिएगा दूध के अंदर जो है। वो खालिश दूध की जो मैं बात कर रहा हूं वो है कि जो भैंस का दूध है वो तकरीबन 180 रुपए मिल रहा होता है। जो गाय भैंस मिक्स दूध है, गाय और भैंस का मिक्स दूध है, वो तकरीबन आपको 160 रुपए मिल रहा होता है। और वो 160 रुपए आपको मिल रहा होता है, तकरीबन 190 रुपए जो है वो आप उसको सेल कर रहे होते हैं। बस ख्याल ये रखना है आपने कि जब आप कहते हैं कि ये गाय और भैंस का मिक्स दूध है तो वो गाय और भैंस का मिक्स दूध ही हो। और बिल्कुल आपने बिल्कुल पढ़ी लिखी अप्रोच लेनी है, ईमानदाराना अप्रोच रखनी है कि आपने इसके अंदर पानी को मिक्स नहीं करना है। बिल्कुल आपने ये जो है ये आपका नो गो एरिया है। देखिए बहुत कारोबार में आपकी बरकत पड़ेगी अगर आप बिल्कुल खालिश चीज दे रहे हैं, वो चीज दे रहे हैं जो कि आप कमिट कर रहे हैं। तीसरा काम जो एक आपको बताने लगा हूं वो है जनाब स्टेशनरी का काम। अच्छा, जो स्टेशनरी का काम है इसके अंदर भी एक अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट करता है और ये तकरीबन मार्जिन जो आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है ये तकरीबन 35%, 35% जो है आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है स्टेशनरी के काम के अंदर। मैं उन लोगों से इख्तलाफ करता हूं जो स्टेशनरी के काम के अंदर ये बात करते हैं कि तकरीबन 100% का प्रॉफिट मार्जिन है। ऐसा नहीं है, 100% का प्रॉफिट मार्जिन नहीं है इसके अंदर जो है। क्योंकि हम ये काम खुद कर रहे हैं तो हमें नजर ये आता है कि इसके अंदर तकरीबन एट द एंड ऑफ द डे हमें 35% जो है वो बच रहा होता है अगर हम मार्केट कंपेटिटिव रेट्स रखें। स्टेशनरी के बहुत सारे आइटम्स हैं, आपका इसके अंदर कागज बेच रहे होते हैं, एक अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होता है कागज के अंदर। तकरीबन इस वक्त जो हमें उर्दू बाजार से कागज का रिम मिल रहा है वो 1250-1300 रुपए का कागज का रिम मिल रहा होता है। जो हम वो बेच रहे हैं कागज का रिम जो है वो तकरीबन हम बेच रहे हैं 1500 रुपए, 1550 रुपए का हम कागज का रिम जो है वो बेच रहे हैं। इसी तरह इसका अंदर बहुत एक अच्छा जो आपको अच्छा मार्जिन, जहां पे आपको 55% प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, वो आपको स्टेशनरी से रिलेटेड जो एक्सेसरीज है, पंच मशीन हो गई, स्टेपलर्स हो गई, इसके अंदर एक बहुत अच्छा मार्जिन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। फिर आपका बॉल पॉइंट, पेंसिल्स, नोट कॉपीज के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर आप उर्दू बाजार से नोट कॉपीज ले रहे हैं
बल्क के अंदर लेकर आते हैं तो आपको एक अच्छा मार्जिन मिलता है। अगर आपकी नोट कॉपीज वगैरह के अंदर आपको एक अच्छी जो है वो आपकी उसकी सेल भी बहुत अच्छी है। रोजाना का आइटम है। अच्छा, चूंकि आप ये काम घर से कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा होता है कि घर के ऊपर 24 आवर्स सर्विस होती है। ठीक है, 24 आवर्स नहीं तो हम लोग तो तकरीबन रात को 10 बजे तक हमारी सप्लाईज जो होती है वो मुख्तलिफ घरों के ऊपर जा रही होती है। दफ्तरों से आपको एक बहुत अच्छा ऑर्डर आ रहा होता है। अगेन, हम डिलीवरी के लिए जो आसपास वो लड़के जो हमारे जॉबलेस हैं और कोई काम करना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं, उनको हम एंगेज करते हैं। एक अच्छा तरीकेकार रहता है, वो जाके वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर कर आ रहे होते हैं। तो स्टेशनरी के काम के अंदर तकरीबन 35% जो है वो आपको प्रॉफिट मार्जिन इनिशियली आपको जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टेशनरी के काम के अंदर, वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 20,000 से आप शुरू कीजिएगा काम जो है, इन्वेस्टमेंट जो है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी आइटम्स आनी है, जो आपने 20,000 रुपए के अंदर आपने आइटम्स मंगवानी है। और आइटम्स के अंदर सबसे पहले जो आप आइटम्स मंगवाएं वो आइटम्स हो आपकी, जैसे कागज हो गया, कुछ रिम्स कागज के मंगवा लीजिएगा, कुछ बॉल पॉइंट्स वगैरह मंगवा लीजिएगा, कुछ कलर पेंसिल्स मंगवा लीजिएगा। 20,000 के बजट के अंदर रहते हुए आप काम शुरू करें, देखें आपको क्या वो जो है वो रिटर्न देता है। अच्छा मार्जिन देगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर, चूंकि इसकी डिमांड जो है ऐसी है कि वो हर वक्त रहती है। इसके अलावा जो मैं आपको काम बताने लगा हूं वो है बेकरी आइटम्स का काम। अच्छा, बेकरी आइटम्स के अंदर भी एक बड़ा अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट करता है, तकरीबन 35% के करीब इसके अंदर मार्जिन एग्जिस्ट करता है। और इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है, बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं आपके अंदर। आपके पास इसके अंदर ब्रेड है, आप अंडे हैं, अंडों में अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट करता है। और आपने अगर एक बड़े अच्छे तरीके से अंडे करें तो आप क्या किया करें कि बल्क में अंडे ले लिया करें और फिर उन अंडों को आप डिफ्रेंशिएट किया करें। मैं मिसाल आपको देता हूं, जो अंडे का थोड़ा सा बड़ा साइज होता है वो तकरीबन 410 रुपए, 415 रुपए, ये आज का मैं आपको रेट बता रहा हूं, पर डजन जो है वो अंडे मिल रहे होते हैं। जो अंडे के नॉर्मल छोटे साइज के अंडे हैं वो तकरीबन 380 रुपए डजन मिल रहे होते हैं। तो अगर आप ज्यादा अंडे लेंगे, आप बल्क में लेते हैं अंडे, तो आपको अंडे की जो कॉस्ट पड़ रही होगी वो तकरीबन तकरीबन बड़ा छोटा मिला के वो अंडे की कॉस्ट आपको पड़ रही होगी 360 या 350 रुपए डजन के करीब। जैसे कराची के अंदर अगर आप पापोश से लेते हैं तो तकरीबन 350 360 रुपए डजन मिलती है। अगर आप लाहौर के अंदर है और लाहौर में आप अंडे की सप्लाई जो है वो टोरंटन मार्केट से लेते हैं तो वहां से भी इतना ही रेट आपको मिल रहा होगा। तो अंडे के अंदर एक अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट करता है आपको। फिर डबल रोटी के अंदर जो है वो एक ऐसा आइटम है जो कि कैश टू कैश ही चल रहा होता है, कोई इतना अच्छा मार्जिन नहीं होता उसके अंदर। आप ज्यादातर जो डबल रोटियां ले रहे होते हैं वो आप डॉन ब्रेड हो गई या आपके जो और ब्रांड्स हैं उनकी डबल रोटी होनी चाहिए। आपके पास मशहूर ब्रांड जरूर होने चाहिए ताकि कोई फोन आपको करे कि मुझे इस ब्रांड की डबल रोटी चाहिए तो आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, और उसके अंदर ये होता है कि हाँ ठीक है, उसमें मार्जिन कम होता है लेकिन वो एक ऐसा आइटम होता है जो आपकी दुकानदारी को चलाएगा, यानी कि आपके काम को चलाएगा। तो डबल रोटी, अंडे, फिर केक। अच्छा, बेकरी के अंदर एक आपको बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप थोड़ा सा बेकिंग का शौक रखें, घर के ऊपर ये चीजें तैयार करें, जैसे कुकीज हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, ये आप घर पर तैयार करें। बहुत ज्यादा आइटम है, हमारा बहुत अच्छा चल रहा होता है ये आइटम जो है। क्योंकि देखो अब ये जो हमारा बनाना केक है, ये एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर हमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तकरीबन 150% तक हमारा प्रॉफिट मार्जिन जा रहा होता है। फिर उसके अलावा टी केक हो गया, इसके अंदर तकरीबन 100% हमें प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है। तो ये वो आइटम्स है कि जिसके अंदर आपको बड़ा अच्छा मार्जिन मिलता है। बेकरी के अंदर एक आपको बहुत अच्छा मार्जिन जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगेन, इसकी डिलीवरी जो है वो उसी तरीके से होगी कि आपने आसपास जो जॉबलेस लड़के हैं वो आपकी ये आइटम्स जो हैं ये डिलीवर कर रहे होंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन 35% के करीब जो है वो प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है और तकरीबन तकरीबन 30,000 के करीब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप पूछेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है आपने? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आपने मिसाल के तौर पर केक्स के लिए आपने पैकिंग मटेरियल लेना है, वो आपको आएगा। फिर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर हो सकता है कुछ बेकिंग पैन आए आपके, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जरूरत होगी आपको इन चीजों की जो है। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। बहुत सारे तरीकेकार हैं कि आप केक बना सकते हैं अगर आपके पास बेकिंग ओवन ना भी हो। हमने जब काम शुरू किया था तो हमारे पास बेकिंग ओवन नहीं था, आज हमारे पास 4 बेकिंग ओवन्स हैं। तो बात यह है कि उस वक्त भी हम लोगों ने जो काम शुरू किया था तो बगैर बेकिंग ओवन्स के काम शुरू किया था और अल्लाह का करम हुआ कि उसके अंदर एक अच्छा मार्जिन हमें मिला। हमने फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो किया। यार एक चीज मैं आपको बताऊं, कोशिश करें अगर हमने कारोबार करना है ना तो कारोबार के अंदर दिखावा कोई चीज नहीं होती कि मैंने कारोबार किया, लोग जुराम मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज।
बनती जाएंगी चीजें, साथ साथ बनती जाएंगी चीजें जो है। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप वो तमाम चीजें जो है आप इकट्ठी लेकर आ रहे हैं। 30,000 के करीब इन्वेस्टमेंट है, 35% इसका ओवरऑल कम्युलेटिव प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके बाद जो मैं आपको काम बताने लगा हूं वो भी एक ऐसा काम है जो कि बिल्कुल सदाबहार काम है, एवरग्रीन, बहुत अच्छा काम है, और वो है सब्जी का काम, वेजिटेबल। अच्छा, वेजिटेबल सप्लाईज जो है वो घर से। अब वेजिटेबल के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि खराब नहीं होती, अदरक लहसुन ये खराब नहीं होता, आलू खराब नहीं होता, प्याज खराब नहीं होता, ये आप बल्क बाइंग कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे प्याज है उसके अंदर बड़े आराम से आप तकरीबन 40 रुपीज पर केजी जो है आप अपना प्रॉफिट जो है वो रख सकते हैं। आलू के अंदर तकरीबन कोई 20 रुपए पर केजी प्रॉफिट रख सकते हैं। टमाटर के अंदर आप कोई तकरीबन 30 से 35 रुपए पर केजी प्रॉफिट रख सकते हैं। आप ये जो आपकी सब्जी के आइटम्स है ना, जो बड़े कॉमन आइटम्स हैं वो आप जरूर अपने पास रखें। वेजिटेबल का अगर आप काम करें, हरा धनिया, पुदीना, हर चीज के अंदर इसके अंदर मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होता है, और एक अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होता है। हरी मिर्चें, ये ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर लोग चाहते हैं कि उनको अच्छी चीज मिले, सप्लाईज मिले और कन्वीनियंस से मिले। अब देखो कंफर्टेबल, मैं क्यों कह रहा हूं कि देखो आजकल जो ज्यादा ट्रेंड आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि लोग कहते हैं कि मुझे बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, जो चीजें मेरे घर के ऊपर डिलीवर हो जाए। अगेन डिलीवरी बॉय का कॉन्सेप्ट है, डिलीवरी बॉय आपके आसपास होंगे, उनको आप हायर करें, रेम्यूनरेट करें, और वो जो है वो ये आइटम्स जो है वो डिलीवर कर रहे होंगे। देखो एक चीज याद रखना, ये ना सोचिएगा कि यार लोग क्या कहेंगे, कि लोग कहेंगे कि यार सब्जी का पता नहीं इतने बुरे हालात हो गए कि सब्जी बेच रहे हैं। वो कुछ नहीं होता यार, सब्जी बेचता है क्या हो गया। बात यह है कि हमने ये नहीं सोचना, मैं एक प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुका हूं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है, इस चीज को याद रखिएगा। आप एक छोटा काम करें, एक अच्छे तरीके से करें, वो बहुत बड़ा काम। आप एक बहुत बड़ा काम करें, बहुत बुरे तरीके से करें, लोगों के साथ फ्रॉड करें, उनके ऑर्डर्स ना पहुंचाएं, बहुत बड़ा काम है लेकिन बहुत बुरा काम कर रहे हैं आप जो। तो इसके अंदर जो है इस चीज को कभी जहन में ना लाइएगा कि यार सब्जी बेचना शुरू हो जाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, सब्जी बेचूंगा। जो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सब्जी बेचें आप, कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे एक बैंकर है, वो ये काम करते, वो बैंकर है, और वो बैंक से जब फारिग होते हैं तो वो लेकर आ जाते हैं घर पे, उनके घर वाले जो है सब्जी लेकर आ जाते हैं घर पे, उनके घर वाले जो है वो सब्जी जो है डिलीवरी बॉयज के जरिए जो है वो बेच रहे होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप डिलीवरी बॉयज के लिए साथ सब्जी के जरिए से सब्जी भी अगर बेच रहे हो, अगर खुद भी जाना पड़े तो कुछ नहीं हो, अच्छी चीज है। आपको मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा है तो आप जरूर करें ये काम जो है। इसके बाद जो मैं आपको काम बताने लगा हूं वो है आपका, अच्छा, वेजिटेबल के काम के अंदर जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी वो तकरीबन 30,000 रुपए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी। अगेन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 35% के करीब आपको प्रॉफिट मार्जिन, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होगा। और ये 30,000 आप कहां खर्च करेंगे, मैं आपको कहूंगा कि आप 35,000 के अंदर डिस्पोजेबल पैकिंग लेकर आए, जिसके अंदर आप अपनी अच्छी जरा थोड़ा ब्रांडिंग हो ना आपकी, कि आप वेजिटेबल बेच रहे हैं, आप एक अच्छे तरीके से भेज रहे हैं, कॉस्ट भी आपकी कम है, और जो आपका आइटम्स हैं उनको अच्छे तरीके से रखा हुआ है आपने, पैकिंग करके आप वो आइटम्स भेज रहे हैं। लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे और उनको इस चीज के अंदर तकलीफ जहमत नहीं होगी कि वो कहेंगे मुझे इसको बाजार से इतना ज्यादा पे करना पड़ रहा है। उनको पता होगा कि उनको एक अच्छा आइटम जो है वो मिल रहा है। हम लोग वेजिटेबल का काम करते हैं और इसके अंदर हमें, बल्कि मुझे एक मैसेज आया और उन्होंने कहा कि वर्थ स्पेंडिंग दिस एक्स्ट्रा अमाउंट। तो यार ये देखो, जब लोग आपको इस तरह का कमेंट देंगे तो आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छे मार्जिन एग्जिस्ट करते हैं, और वेजिटेबल का काम भी जो है वो एवरग्रीन काम है इसके अंदर जो। इसके बाद जो काम बड़ा प्रॉफिटेबल है, अगेन 30% का इस पे प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है, और वो है ग्रोसरी का काम। अच्छा, जनरल ग्रोसरीज, ग्रोसरी आइटम्स। अब ग्रोसरी आइटम्स के अंदर बहुत सी आइटम्स आती हैं, आपने सोचना है कि आपने किन आइटम से शुरू करना है। मेरा मशवरा ये होगा कि सबसे पहले आप वो आइटम्स लेकर आएं जिनकी रोजमर्रा की जरूरियात है, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, मसाले, यहां से काम शुरू करें। इसके अलावा साबुन, शैम्पूज, ये चीजें। तो फिर कार्ट्रिजेस, अब आपको पता है ये जो आप ये जो जिलेट के कार्ट्रिज हैं, इसके अंदर अगर आप जैसे शाह आलमी से लेते हैं या कराची में बोल्टन मार्केट से लेते हैं तो वो कार्ट्रिज का जो पैकिंग वहां से मिलती है वो 2,800 रुपए की मिलती है, जबकि आपके करीब में जो उसका रेट है वो तकरीबन तकरीबन कोई 4,200 रुपए। बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर इसी तरह शैम्पूज के अंदर आपको कलर, ये जो हेयर डाइज होते हैं, इनमें मार्जिन एग्जिस्ट करता है। फिर करियाने की चीजों के अंदर आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल रहा होता है। तो आपको जो
तकरीबन टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जो कि इनिशियली आप आइटम्स लेकर आएंगे। और सोच लीजिएगा कि मैंने ग्रोसरी का अगर काम शुरू करना है तो मैं सारे आइटम्स में, ग्रोसरी की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं सारे आइटम्स में नहीं जा रहा हूं या जा रही हूं, बल्कि मैंने ये 6 आइटम्स 10 आइटम्स जो है इनके अंदर मैंने काम जो है वो शुरू करना है। तो आपको एक अच्छा मार्जिन मिलेगा। और स्टार्टअप के जब आप शुरू करते हैं तो उसमें कोशिश करें कि वो चीजें जिसके अंदर आपका सेल्फ कंट्रोल कर सके आइटम्स को जो है, और फिर आपने आइटम डिलीवरी के लिए वही काम करना है कि जिसके अंदर आपने डिलीवरी बॉयज को हायर करना है। अब देखो ये आपकी जो टोटल 6 काम मैंने आपको बता दिए, ये आपकी 6 कंपनीज हो गई। ऑन एवरेज मैं आपको अगर बताऊं तो होम किचन बिजनेस से जब आपका काम चल जाता है तो आप पर मंथ जो है ना वो तकरीबन, मैं बहुत हम्बल प्रॉफिट आपको बता रहा हूं, पर मंथ तकरीबन आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट जो है ना वो होम किचन बिजनेस से अर्न कर रहे होते हैं। वेजिटेबल से तकरीबन तकरीबन आप कोई 50 से 60 हजार रुपए का प्रॉफिट जो है वो वेजिटेबल से अर्न कर रहे होते हैं। ग्रोसरी से आप तकरीबन कोई जो प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं वो 80,000 रुपए के करीब ग्रोसरी से अर्न कर रहे होते हैं। दूध के काम से तकरीबन कोई आप 40-45 हजार रुपया अर्न कर रहे होते हैं प्रॉफिट जो है। तो आप बेकरी के अंदर आप देखें तो 45-50 हजार रुपया आप बेकरी से अर्न कर रहे होते हैं। इन ओवरऑल अगर आप देखें और आप ये 6 के 6 काम शुरू करते हैं तो आपको पर मंथ जो इनकम मिल रही होगी वो तकरीबन कोई, आप समझ लें कि कोई 3 लाख 4 लाख रुपए के करीब जो है आपको इन छोटे छोटे कामों से इनकम मिल रही होगी। और ये इनकम जो है, इसके लिए मैं एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करूंगा, ये इनकम कहलाती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप अपने घर बैठे हुए हैं, डिलीवरी बॉयज काम कर रहे हैं और आप अपने घर के कंफर्ट से जो है वो ये अर्निंग जो है वो ये कर रहे होंगे। तो पैसिव इनकम के इन आइडियाज की तरफ जरूर जाइएगा। मत सोचिएगा ये चीज कि यार मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, एक अच्छी नौकरी कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा काम है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये अच्छे मार्जिन देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को मेरी इन बातों का फायदा पहुंच सकता है तो ये प्रोग्राम और चैनल शेयर जरूर कीजिएगा।